So good afternoon, everyone. And before starting this session, I would like to introduce myself. My name is Israel Suhail Khan, and I am working here as a technical and derivative analyst. And I am into this market from last 13 years and continuous analyzing the chart since from 2010. So I am very passionate about the chart. And if we talk about the today's session, how to time your trades. As name suggests, time your trades. As name suggests, time your trades. So timing is very important for any trade, either for any investments also, right? So this session is purely based on the technical, and technical is not only tell us the direction of the market, even it's tell us the timing of the market, right? So let's start for the session, and we'll discuss how we can improve our trading and investment strategy with the help of the technicals, right? So let's start. How to time your trade. This is part one because we have organized this one just for a half an hour session, right? So we cannot cover all the parts into one session. That's why we have put up here part one. And if you like this seminar, so definitely we'll organize another one. So let's start for the session. So these are the content for the today's session. And first is like trend analysis, and second one is price behavior on the based on the candlestick pattern, and third one is identify entry and exit points, right? So let's start from the trend analysis. What is trend analysis? Basically, see, we divide a trade into three parts, right? One is like uptrend, second one is a downtrend, and third one is a sideways market, right? So we'll discuss one by one what is uptrend, what is downtrend, what is sideways market, and how we can use this uptrend to improve our trading strategy, right? So let's start from the uptrend market. Okay, what is uptrend? See, this is basically this is a definition of uptrend, right? So when we define to the uptrend we call when stock is continuous making higher top higher bottom formation, right? So this is a uptrend actually. See this chart. आप ये chart देख रहे हैं. See, when stock is going up and then stock is again coming down, then again stock is going up, right? So if I'll take examples of one stock, suppose one stock is trading around 100 rupees, right? So मैं इसी तरीके से एग्जांपल लेके चलूंगा कि जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो. हम अप ट्रेंड की डेफिनेशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? एक स्टॉक सपोज करिए 100 रुपए से चलना शुरू हुआ है एंड इट्स वेंट अप टू 110 रुपीज, राइट? एंड देन अगेन इट्स केम डाउन टू 105, बट इट डजंट ब्रेक द प्रीवियस लो. प्रीवियस लो मींस कि जो 100 रुपीज का जो लो था वो स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया, एंड अगेन 105 रुपए से स्टॉक दोबारा से रिवर्स हो गया एंड अगेन इट्स वेंट अप टू 115 रुपीज, राइट? जो उसका 110 रुपए का हाई था वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया. So this is called uptrend when stock is continuous making higher top higher bottom formation, right? So let's see the example. हम लोग example के साथ समझते हैं कि uptrend basically होता क्या है, कैसे uptrend को हम define करते हैं. See, देखिए ये Reliance का चार्ट है, ये Reliance का डेली चार्ट है. आप Reliance को देखिए, Reliance when stock is continuous trading higher top with a higher top higher bottom formation. आप देख रहे हैं ना, ये डेली चार्ट है रिलायंस का. मैं आपको अपना सॉफ्टवेयर के साथ दिखाता हूँ. सी, दिस इज रिलायंस, राइट? जब रिलायंस, आप रिलायंस को देखिए, रिलायंस दिस इज अ लाइन चार्ट. बेसिकली ये लाइन चार्ट है रिलायंस का. व्हेन स्टॉक इज कॉन्टिन्यूअस ट्रेडिंग विद अ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन. आप ये देख रहे हैं, ये देखिए ये स्टॉक का ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ एंड स्टॉक का ये 1020 का लेवल है. स्टॉक अगेन ऊपर गया 1100, अगेन नीचे आया, लेकिन ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया एंड अगेन स्टॉक यहाँ से 1200 की तरफ चला गया. अगेन स्टॉक केम डाउन, राइट, 1130, बट ये जो प्रीवियस बॉटम है कहीं ना कहीं इसे स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया, राइट? एंड अगेन स्टॉक इज कॉन्टिन्यूअस गोइंग अप, राइट? सो आप कहीं भी देखेंगे स्टॉक ने कहीं पर भी प्रीवियस बॉटम ब्रेक नहीं कर रहा. ये देखिए ये स्टॉक में करेक्शन बना, आप इसे यहाँ से देखिए, ये स्टॉक में करेक्शन बना बट ये जो प्रीवियस बॉटम है वो बॉटम ब्रेक नहीं हुआ, राइट? तो इट्स कॉन्टिन्यूअस ट्रेडिंग विद हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन. This is a very classic example of uptrend, right? So I hope you understand कि uptrend क्या होता है and कैसे हम uptrend को देखते हैं.
तो ये बहुत क्लियर है कि हमें जब भी किसी स्टॉक में ट्रेड करना है, स्टॉक में आइदर वो ट्रेडिंग करनी है, आइदर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करनी है, वी हैव टू चेक द ट्रेंड, राइट, कि ट्रेंड, स्टॉक का ट्रेंड क्या कह रहा है, स्टॉक का ट्रेंड ऊपर है या नीचे है, स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ अप ट्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर डाउन ट्रेंड, कि डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं। सी, जैसे हमने अप ट्रेंड को डिफाइन किया है कि हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन के साथ अप ट्रेंड चल रहा है, उसी तरीके से जब स्टॉक कॉन्टिन्यूअस मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर बॉटम्स, इट्स मीन स्टॉक इन ए डाउन ट्रेंड, राइट। देखिए, आप इस लाइन से आप समझ जाएंगे कि सपोज एक स्टॉक 100 रुपीज का है एंड इट्स वेंट डाउन टू 90 रुपीज, एंड अगेन वो स्टॉक 95 तक गया, बट उसने 100 क्रॉस नहीं किया, और अगेन दोबारा से जब वो ब्रेक किया, उसने 85 के लो को भी ब्रेक कर दिया। मतलब जो लो बना रहा है, ये लो वो कॉन्टिन्यूअस लोअर बना रहा है, राइट, continuous lower highs बना रहा है एंड continuous lower lows बना रहा है। सो दैट्स मीन स्टॉक इन ए डाउन ट्रेंड। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें जब भी हमें कुछ करना है, सो ऐसे स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए व्हेन स्टॉक इन ए डाउन ट्रेंड। सो लेट्स टेक ए वन एग्जांपल, हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि डाउन ट्रेंड कहते किसे हैं। सी, दिस इज ए जी एंटरटेनमेंट, दिस इज ए वीकली चार्ट ऑफ जी एंटरटेनमेंट। अब ये स्टॉक, अब इसका प्राइस देखिए स्टॉक का, व्हेन स्टॉक इज देखिए इस लेवल पे स्टॉक कॉन्टिन्यूअस साइडवेज था, एंड उसके बाद स्टॉक कॉन्टिन्यूअस ट्रेडिंग विद अ लोअर टॉप लोअर बॉटम, एंड देखिए स्टॉक ऊपर गया, बट ये जो प्रीवियस टॉप था इसे ब्रेक नहीं किया, और वहीं से स्टॉक दोबारा नीचे, राइट, एंड देन अगेन ऊपर गया, फिर अगेन प्रीवियस वन को इसने ब्रेक नहीं किया। सी, देखिए आप ये देखिए, एंड देन अगेन स्टॉक वहां से ऊपर जाने के बाद अगेन स्टॉक में एक ह्यूज करेक्शन बना, और ह्यूज करेक्शन बनने के बाद अगेन स्टॉक देखिए कॉन्टिन्यूअस स्टॉक विद ए लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहा है। अगेन स्टॉक ने यहाँ से पुल बैक लिया है, राइट, ये पुल बैक लेने के बाद भी, बट अगेन ये जो प्रीवियस पीक था स्टॉक का, वो पीक स्टॉक ने दोबारा से क्रॉस नहीं कर पाया, और वहीं से स्टॉक में एक अच्छा खासा फॉल बन गया है। तो देखिए स्टॉक माइट भी 300 रुपए से स्टॉक आज करेक्ट होके 150 रुपए आ गया है, राइट। सो व्हेन वी आर वाचिंग कि स्टॉक क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, so we should avoid this stock, we should not take any trade. So I hope you understand कि अप ट्रेंड कैसे हम जज करते हैं एंड डाउन ट्रेंड हम कैसे जज करते हैं, राइट। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज साइडवेज मार्केट। देखिए साइडवेज मार्केट, एवरीबॉडी नो कि साइडवेज मार्केट क्या होती है, किसे साइडवेज मार्केट हम लोग कहते हैं। व्हेन स्टॉक इज ट्रेडिंग इन ए गिवन रेंज, राइट, सपोज एक स्टॉक है जिसका जो 100 रुपीज एंड 80 रुपीज के बीच में ट्रेड कर रहा होता है, राइट। सो ये हायर लेवल जो है वो 100 रुपीज का है, लोअर लेवल 80 रुपीज का है। ये जब भी स्टॉक इस तरीके के फॉर्मेशन के साथ ट्रेड करता है, तो इट्स अ वेरी इनडिसाइसिव डिसीजन, यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। वो अलग बात है कि आप बॉटम के आसपास स्टॉक आए तो आप उसे बाय कर सकते हैं, और पीक के आसपास जाए तो स्टॉक को सेल कर सकते हैं। सी, देखिए दिस इज एग्जांपल ऑफ साइडवेज, बट आप ये भी मान के चलिए कि यही वो पैटर्न्स होते हैं, यही वो डेवलपमेंट्स होती हैं जहां से किसी भी स्टॉक का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड शुरू होता है। देखिए अगर ये स्टॉक यहीं से अपसाइड की तरफ, यहाँ से अपसाइड की तरफ निकल जाए तो दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंड, और यहीं से ये स्टॉक डाउन की तरफ निकल जाए दैट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक किस तरफ से फॉर्मेशन कर रहा है, किस तरफ निकल रहा है। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ ये भी। सी, दिस इज ए रिलायंस, दिस इज ए रिलायंस वीकली चार्ट। अभी देखिए मैंने अभी अप ट्रेंड आपको दिखाया था पीछे भी रिलायंस में ही, इससे पहले मैं ये साइडवेज और कंसोलिडेशन भी आपको रिलायंस में ही दिखा रहा हूँ, राइट। सी, देखिए ये जो रिलायंस का चार्ट है ये 2008 से लेके 2015-16 तक का चार्ट है। ये जो आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना स्टॉक का, ये टाइम फ्रेम पिछले 2008 से लेके 2014 तक के लिए है। इस स्टॉक ने even 6-7 साल में nobody's make money in the stock, right? Because stock was clearly into consolidation mode. But आप ये देखिए जब इसने consolidation break किया और जब ये breakout बना, see within a 2 years stock almost 3 times हो गया, आप almost 3 times हो गया, right? सो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि जब तक स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करे, कंसोलिडेशन में ट्रेड करे, वी शुड अवॉइड द स्टॉक, राइट। एंड जब भी यहाँ से ब्रेकआउट बने, वो कंसोलिडेशन ब्रेक करे, तो वी शुड बाय दिस स्टॉक, राइट।
सो ये एग्जांपल जो आपका है, दिस इज अ साइडवेज मार्केट। तो जब तक स्टॉक साइडवेज है, जब तक हमें स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, वी शुड नॉट बाय एनी स्टॉक, राइट। बट जब भी स्टॉक में ये कंसोलिडेशन ब्रेक हो, तो हमें स्टॉक को बाय करने के लिए देखना चाहिए, राइट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ साइडवेज मार्केट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ट्रेंड क्या होता है, किसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, किसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, किसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं, राइट। So this is about the trend, right? Now we'll discuss about the candlestick pattern, right? कि candlestick क्या होता है, कैसे हम इसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे ये डेवलप होती है। So that is very important part. जब भी कोई चार्ट देखता है तो चार्ट में सबसे पहले कैंडल्स का ही डेवलपमेंट होता है और उसी के बेसिस पे प्राइस बिहेवियर और प्राइस डायरेक्शन तय किया जाता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग कैसे कैंडलस्टिक को एनालिसिस करते हैं। देखिए, जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, देयर आर टू थिंग्स कि एक कैंडल बुलिश होती है, एक कैंडल बेयरिश होती है, उसके अलावा तीसरी कैंडल कोई नहीं होती है, राइट। सो जब हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं, राइट, इट्स ए ग्रीन कैंडल, इट्स ए बुलिश कैंडल, इट्स ए रेड कैंडल, इट्स ए बेयरिश कैंडल, राइट। सो आप ये मान के चलिए, इस ग्रीन कैंडल्स कलर डजंट मैटर, कलर व्हाइट भी हो सकता है। जनरली चार्ट्स पे आप देखा, कई बार आपने देखा होगा, ग्रीन कैंडल्स होती हैं, व्हाइट कैंडल्स होती हैं, दीज आर बुलिश कैंडल्स। और अगर वो रेड कैंडल्स हैं या ब्लैक कैंडल्स हैं, दीज आर बेयरिश कैंडल्स, राइट। तो ये बुलिश हो गई, ये बेयरिश हो गई। और देखिए, आप कैंडल्स की डेवलपमेंट्स को समझिए कि ये कैसे बनती है। सिंपल, अगर कोई भी स्टॉक 100 रुपए का है, आज 100 रुपए का ओपन होता है और वो 105 के आसपास बंद होता है, तो इट्स मीन उसका कलर ग्रीन होगा, वो बुलिश कैंडल होंगी एंड या व्हाइट कैंडल्स होंगी। आप समझ गए ना, जो अपना ओपनिंग प्राइस से ऊपर अगर कोई भी कैंडल्स बंद होती हैं, दैट इज ए बुलिश, मतलब इट्स काइंड ऑफ बुलिश। हम उसे बुलिश नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट डे कुछ भी हो सकता है, बट इट्स काइंड ऑफ बुलिश, जो डे की फॉर्मेशंस होती हैं कैंडल्स की। बट अगर हम बेरिश कैंडल्स की बात करें, तो अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पे आज ओपन हुआ एंड इट्स जो उसका शाम को क्लोजिंग 330 के आसपास की क्लोजिंग है, वो अगर 95 के आसपास होती है, तो दैट इज ए बियरिश कैंडल, राइट। सो वो रेड कैंडल्स बनती है। सो इसे हम बुलिश कैंडल्स बोलते हैं, इसे हम बियरिश कैंडल बोलते हैं। और इसी कैंडल्स में वन इंपॉर्टेंट थिंग कि देखिए, कैंडल्स के दो पार्ट्स होते हैं। वन इज बॉडी, ये मैं कैंडल की बॉडी के बता रहा हूँ, और ये जो है कैंडल की, इसे हम विक्स कहते हैं या अपर शैडो कहते हैं, राइट। तो कैंडल की बॉडी, देखिए, कैंडल की बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। जो कैंडल की बॉडी, ऐसा नहीं विक्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट समहाउ कैंडल की जो बॉडी होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड वी हमें जब भी हम एनालाइज करते हैं चार्ट्स को, वहां पर ये बॉडी का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट। सो अभी हम लोग, आई होप यू अंडरस्टैंड कि बेसिकली कैंडल्स कहते किसे हैं, राइट। कि बुलिश कैंडल कौन सी होती है, बेयरिश कैंडल कौन सी होती है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कैंडल्स, राइट। कि स्पेसिफिकेशन किस तरीके से होती है कैंडल्स की। देखिए, ये कुछ कैंडल्स हैं जो मैंने आपको सामने आप देख रहे हैं, राइट। सो पीछे हमने बुलिश बेयरिश कैंडल्स बताई थी। वहां पर जो बुलिश कैंडल थी वो ग्रीन थी, बट यहाँ पर ये हमने व्हाइट कैंडल्स रखी है, और जो बेयरिश कैंडल्स हैं वो ग्रीन कैंडल्स हैं, राइट। देखिए, फर्स्ट कैंडल्स जिसके अंदर पूरा ऑलमोस्ट इस कैंडल्स का बॉडी है, राइट, इट्स होली बॉडी है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि विक्स नहीं होती हैं, बट आप ये देखिए टेक्निकल्स में, दिस कैंडल इज वेरी ब्यूटीफुल कैंडल एंड इसका बहुत ही महत्व होता है टेक्निकल्स के अंदर, राइट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल। जब हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं, इट्स काइंड ऑफ, इसे जो हम बोलते हैं, इट्स ए मोरू बाजू कैंडल, राइट। और जब भी इस कैंडल की डेवलपमेंट्स होती है, कभी भी किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी चार्ट्स पे, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इस कैंडल का। देखिए, इस कैंडल्स का इंपॉर्टेंस का मतलब ये है, इस कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी है। बॉडी का मतलब इसमें विक्स बहुत कम है, राइट। बॉडी का मतलब ये है कि सपोज करिए एक स्टॉक्स है जो आज 100 रुपए पे खुला एंड 110 रुपए तक गया, राइट। और जो आज का हाई है वो 110 रुपए पे गया, और जो आज की क्लोजिंग है उसकी 110 रुपए के आसपास ही है, राइट। लेट्स टेक एग्जांपल की 109 की क्लोजिंग है, तो उसमें जो विक्स बनेगी वो खाली 1 रुपए की बनेगी, और ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक का पूरा बॉडी का ही पार्ट रहेगा, पूरा एंटायर बॉडी रहेगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड मोरू बाजू कैंडल। देखिए, इससे नेक्स्ट कैंडल जो है, ये जो नेक्स्ट कैंडल है, दिस इज
लेस बुलिश, इससे जो नेक्स्ट कैंडल है ये भी बुलिश कैंडल है, इससे जो नेक्स्ट कैंडल है दिस इज ऑल्सो ए बुलिश कैंडल, राइट। बट जितनी इंपॉर्टेंट इस कैंडल्स की है उतनी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो एवरी कैंडल्स हैव ऑन इंपॉर्टेंस, बट इस कैंडल्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। दिस इज कॉल्ड मोरू बाजू कैंडल। मैं भी आपको डेफिनेशन के साथ भी दिखाऊंगा, राइट। एंड दिस कैंडल इज बेसिकली ये इनडिसाइसिव कैंडल है, टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे डोजी बोलते हैं। देखिए इसकी अपनी बॉडी कुछ नहीं है, पूरी की पूरी विक्स है। विक्स का मतलब ये कैसे बनी कि एक स्टॉक 100 रुपए पे खुला एंड नीचे 95 गया एंड ऊपर 105 गया एंड एट द एंड वो दोबारा से 100 रुपीज के आसपास ही बंद हो गया। तो दिस इज कॉल्ड डोजी। इट्स अ वेरी न्यूट्रल कैंडल, राइट। इट्स अ न्यूट्रल कैंडल, ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल कैंडल है। एंड फर्दर ये देखिए ये जो कैंडल्स हैं, ये जो ब्लैक कैंडल्स हैं, दीज ऑल आर बेयरिश कैंडल्स, राइट। और जैसे मैंने फर्स्ट कैंडल के बारे में बताया था उसी तरीके से मैं लास्ट कैंडल के बारे में बता रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो वेरी बेयरिश कैंडल, और ये बहुत ही गंदी कैंडल होती है। जब भी कहीं भी चार्ट में इस कैंडल की फॉर्मेशंस होती हैं, इट्स ए वेरी बेयरिश, मतलब इट्स मीन कि स्टॉक का माइट बी बेयरिश ट्रेंड भी शुरू हो सकता है, और कहीं ना कहीं अगर ये अपर साइड में बनती है तो इट्स मीन शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड भी डाउन हो जाता है, राइट। सो वी हैव टू एनालाइज कि कैसे 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 होता है। मैं आपको इस तरीके की कैंडल की स्पेसिफिकेशन और आपको चार्ट के साथ समझाता हूँ। देखिए आप ये देखिए, जो हम मोरू बाजू कैंडल की बात कर रहे थे, ये रिलायंस का ही चार्ट है। सी, ये रिलायंस का चार्ट है। आप रिलायंस का ये देखिए, सी दिस कैंडल, ये कैंडल देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मोरू बाजू। देखिए कैंडल्स की बिल्कुल भी विक्स नहीं है, राइट। कैंडल की विक्स नहीं है। ये कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, आप यहाँ देखिए, जहां से बॉटम से रिलायंस शुरू हुआ था चलना, ये देखिए दिस कैंडल, दिस कैंडल ऑल्सो हैविंग ए दिस कैंडल, राइट। इस कैंडल के अंदर भी बिल्कुल विक्स नहीं है। ये बहुत ही देखिए पूरी पूरी कैंडल के अंदर बॉडी है। बॉडी का मतलब आप ये मान के चलिए, देखिए इस कैंडल में ये देखिए, इसका ओपनिंग प्राइस क्या है 1088 और क्लोजिंग प्राइस क्या है 1090, राइट, और 98 का हाई लगा है, राइट। तो इसमें विक्स बहुत कम है और बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज कॉल्ड मोरू बाजू कैंडल। ये कैंडल जब भी बनती है, वहां से देखिए रिलायंस के अंदर ये कैंडल्स बनने के बाद एक भी बार रिलायंस इसके नीचे नहीं आया जब यहाँ पर डेवलपमेंट हुई, राइट। ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, देखिए यहाँ पर भी बना, देखिए उसके बाद यहाँ पर बना, देखिए इसके बाद भी रिलायंस इसके नीचे नहीं आया, राइट। यहाँ पर भी बना, देन अगेन देखिए इस कैंडल के आसपास, देखिए यहाँ पर ये कैंडल ये भी हुआ, देन अगेन देखिए ये इस कैंडल के आसपास, राइट, दिस वन, राइट। ये देखिए दिस इज ऑल्सो मोरू बाजू कैंडल, राइट, राइट। सो ये जब भी इस कैंडल्स की डेवलपमेंट्स होती है, इट्स अ वेरी बुलिश कैंडल्स। और इस कैंडल्स के बनने के बाद मतलब देयर इज ह्यूज प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ ह्यूज चांसेस कि मार्केट विल गो, या किसी स्टॉक के अंदर बनता है तो स्टॉक विल गो अप, एंड अगर मार्केट या बेंचमार्क के अंदर बनता है तो इट्स में बेंचमार्क विल गो अप, राइट। So this is the specification of the candles. I hope you understand कि किस कैंडल्स को हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन सी बुलिश कैंडल्स होती हैं, कौन सी बियरिश कैंडल्स होती हैं, राइट। देखिए जो मैंने आपको अभी यहाँ समझाया उसी का थोड़ा सा डिटेल वर्जन है। दिस इज जस्ट अबाउट द बॉडी, कि कैंडल की बॉडी को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, साइज ऑफ द बॉडी इंडिकेट स्ट्रेंथ, राइट। सो जितना बड़ा साइज होगा बॉडी का, वो उतना ही स्ट्रेंथ शो करेगा, राइट। जितना बड़ा कैंडल्स का बॉडी होगा, देखिए विक्स होता है और बॉडी होता है कैंडल के अंदर। अगर जितनी बड़ी बॉडी है स्टॉक की, उतना ही स्ट्रेंथ शो करेगा, उतना ही उसका ट्रेंड इंटेंसिफाइड होगा, ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर विक्स के अंदर कैंडल के अंदर विक्स बननी शुरू हो जाए तो वहां पर ट्रेंड थोड़ा सा लूज हो जाता है। ट्रेंड लूज का मतलब आई वुड से ट्रेंड थोड़ा वीक हो जाता है, वो मोमेंटम खत्म हो जाता है, राइट। तो जितनी बड़ी बॉडी है कैंडल्स की, उतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिकली ट्रेंड होता है, राइट। तो दिस इज अबाउट द बॉडी, कि हम बॉडी को कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द शैडो। देखिए मैंने दो चीज बताई थी आपको, बॉडी एंड शैडो के बारे में। तो दिस इज अबाउट द शैडो, राइट, कि शैडो किसे कहते हैं। तो देखिए जब बॉडी की जगह शैडो किसी भी कैंडल्स में बड़ी बनना शुरू हो जाती है, तो उसका मतलब ट्रेंड स्लाइडली वीक हो जाता है। शॉर्टर शैडो इंडिकेट स्टेबल मार्केट विद अ लिटिल अनस्टेबिलिटी, राइट। देखिए जितनी शॉर्टर शैडो होगी, जो विक्स जिसे बोलते हैं,
उतना ही मार्केट स्टेबल होगी, राइट, उतनी ही स्ट्रॉन्ग मार्केट होगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कैंडलस्टिक की कैसे कैंडल्स को हम स्पेसिफाइड करते हैं, कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग होती है, कब कैंडल्स का क्या स्पेसिफिकेशन होता है, वो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कि इस कैंडल्स को हम कैसे यूज करते हैं। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि भाई मोरू बाजू कैंडल जब भी बनती है तो हमें कैसे पॉजिटिव ट्रेड्स लेने चाहिए, राइट। जब भी इस तरीके का या नेगेटिव कैंडल जब भी बनती है तो हमें किस तरीके से नेगेटिव साइड पे ट्रेड्स देखने चाहिए, राइट। बट दिस कैंडल इज वेरी ब्यूटीफुल कैंडल when we talk about Moru Baju, right? So now we have discussed about the candlestick. Now we'll discuss about some candlestick pattern, right? One candle pattern, two candle pattern. These are a very basic patterns, right? जो आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे, but there are a number of patterns, right? But we cannot discuss the entire one, right? Because we have a limited time. We have a 30 minutes only. So we'll discuss only the few one, right? One is like doji. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डोजी किसे कहते हैं, राइट। डोजी, दिस इज कॉल्ड डोजी, जिसकी अपनी कोई बॉडी नहीं होती है, इट्स अ विक्स ओनली, ठीक है ना, इसकी मेजर विक्स ही होती है, राइट। ये बहुत ही देखिए रिप्रेजेंट इनडिसीजन बिटवीन बुल्स एंड बेयर। देखिए ये बहुत ही इंडिसाइसिव कैंडल्स होती है, लेकिन इसका जो हम स्पेसिफिकेशन करते हैं किस तरीके से करते हैं, देखिए अगर कोई भी डाउन ट्रेंड में, सपोज करिए दो तरीके के ट्रेंड होते हैं डाउन ट्रेंड में, अगर डाउन ट्रेंड पे बॉटम पे डोजी बन जाता है तो वो इंडिकेशन होता है कि माइट बी स्टॉक मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, राइट। अगर यही डोजी ऑन द टॉप बन जाती है, राइट, ऑन द टॉप बन जाती है तो वहां पर स्पेसिफिकेशन हो जाता है कि माइट बी मार्केट में थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल बन सकता है, या मार्केट में यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है, राइट। सो लेट्स टेक एग्जांपल। देखिए ये निफ्टी का डेली चार्ट है, ठीक है। ये निफ्टी जब निफ्टी में पैंडेमिक के टाइम एक ह्यूज करेक्शन बना था, कॉन्टिन्यूअस मार्केट वाज कमिंग डाउन, राइट। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। देखिए देखिए निफ्टी जब यहाँ से 12,000 11,000 के लेवल से टूट के 7,500 तक आई थी निफ्टी, सी दिस चार्ट। देखिए ये जो कैंडल है, देखिए बिल्कुल बॉटम पे निफ्टी ने डोजी बनाया था। आप देख रहे हैं ये कैंडल यहाँ पर, ये रहा, राइट। इसकी विक्स कितनी बड़ी है और एक बहुत छोटी सी बॉडी है। तो यहाँ जब भी डोजी बॉटम्स पे बनती है, इट्स ए इंडिकेशन कि बॉस यहाँ से मार्केट में माइट बी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो जब भी हम डोजी बेस पे कोई भी ट्रेड लेते हैं, फॉर द नेक्स्ट डे की हमें क्लेरिफिकेशन चाहिए होती है, और अगर हम कोई भी ट्रेड भी लेते हैं इस डोजी बेस पे, तो हमें क्या इस डोजी के लो का स्टॉप लॉस लेके हमें फर्दर बाइंग साइड पे ट्रेड लेना है, राइट। सो दिस इज अबाउट द डोजी, कि डोजी कैसे बनती है, डोजी का क्या महत्व होता है, राइट। एंड सेकेंड पैटर्न विल डिस्कस हैमर, राइट। सो देखिए ये भी जैसे मैंने आपको मोरू बाजू के बारे में बताया था, दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल कैंडल, राइट। दिस इज हैमर, बहुत कॉमन कैंडल है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। इट जस्ट लाइक ए हथौड़ी, जैसे हम हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं ना हथौड़ी, इसकी अपनी शैडो नहीं होती, मतलब बॉडी नहीं होती बहुत बड़ी, इसकी शैडो बहुत बड़ी होती है, राइट। इसकी शैडो जो बॉडी होती है उसकी 3-4 टाइम्स होती है, राइट। देखिए ये बॉडी, ये बेसिकली, और ये जब भी बॉटम पे बनती है इसका बहुत ही सिग्निफिकेंस होता है, राइट। बॉटम पे बनने के बाद कई बार मार्केट पूरी की पूरी वहां से रिवर्स कर जाती है। सो दिस कैंडल इज ए बुलिश कैंडल, इट्स ए बॉटम रिवर्सल पैटर्न, राइट। अगर ये बॉटम पे बनता है तो यहाँ पर हमें कई बार रिवर्सल देखने को मिल जाता है। देखिए मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। देखिए ये भी निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी में देखिए जब भी करेक्शन के बाद ये देखिए दिस कैंडल, ये सॉरी जस्ट अ मोमेंट, दिस कैंडल, सी दिस वन, राइट। ये देखिए ये हैमर बना हुआ है। देखिए ये कैंडल्स देखिए जब भी करेक्शन के बाद बॉटम के आसपास कहीं कुछ बनता है, दिस कैंडल, सी देखिए ये हैमर बना हुआ है। सो हैमर, अभी मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल्स की बात करूं, मैं लेटेस्ट एग्जांपल दिखाता हूं आपको निफ्टी के अंदर ही। निफ्टी में देखिए 60 मिनट चार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अभी जिस दिन मार्केट में मेजर करेक्शन बना था, मार्केट अभी फ्राइडे वाले दिन, जिस दिन मार्केट के अंदर मेजर करेक्शन हुआ था ना, ये देखिए मार्केट ने करेक्शन होने के बाद इवनिंग में देखिए कितना अच्छा हैमर बना के गया था, राइट। ये देख रहे हैं आप, ये 60 मिनट चार्ट पे, और यहाँ से निफ्टी 11,100 से आज निफ्टी 11,400 आ गई, 300 पॉइंट। सी, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि जब भी इस तरीके की बॉटम फॉर्मेशंस होती हैं हैमर के अंदर, वी नीड टू चेक कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो इस लो के स्टॉप लॉस से हमें वी शुड बाय दिस स्टॉक,
राइट, वी शुड बाय दिस स्टॉक, आइदर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक हो, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, ये लेटेस्ट एग्जांपल्स है अभी जो निफ्टी ने 60 मिनट में हैमर बना के गया था, राइट। सो जस्ट राइट, सो दिस इज ए वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ हैमर। देखिए हैमर में क्या होता है, कलर डजंट मैटर, आप कलर रेड है, ग्रीन है, डजंट मैटर, राइट। अगर ये बॉटम पे बन रहा है किसी भी स्टॉक के बॉटम पे, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, राइट। मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ, राइट, बट विल डिस्कस वन बाय वन कि जब भी इस तरीके की फॉर्मेशन कभी भी बॉटम पे होती है, वी शुड लुक फॉर ए बाय, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कैंडल। और इस कैंडल के लो का हमेशा नेक्स्ट डे हमें क्लेरिफिकेशन मिलती है, और इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेके हम किसी भी स्टॉक को या निफ्टी को या बैंक निफ्टी को या जो भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स है, वी कैन बाय, राइट। सो दिस इज अबाउट हैमर, एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट टू कैंडल पैटर्न। अभी हमने वन कैंडल्स पैटर्न की बात करी है, जिसमें हमने डोजी बात करी, हमने हैमर की बात करी है, राइट। सो नाउ this is bullish engulfing. This is a two candle pattern, right? It's a reversal pattern, right? It's a reversal pattern. Basically ये candles हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है, बॉटम पे बनता है, राइट। सपोज करिए कि स्टॉक का किसी का भी डाउन ट्रेंड चल रहा हो, कि एक स्टॉक 100 रुपए पे चल रहा है एंड कॉन्टिन्यूसली वो टूटते टूटते 50 रुपए आ गया है, राइट। एंड 50 रुपए टूटने के बाद इस तरीके की कहीं पर फॉर्मेशंस होती है कि एक कैंडल रेड बनने के बाद नेक्स्ट डे की कैंडल गैप डाउन खुल के और उस पूरी कैंडल्स को कवर कर देता है। जो रेड कैंडल्स है उस पूरी कैंडल्स को ग्रीन कैंडल या व्हाइट कैंडल कवर कर देता है, एंटायर बॉडी को, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, देखिए ये एंटायर बॉडी को। सो दिस इज कॉल्ड बुलिश इनगल्फिंग। इट्स अ वेरी गुड पैटर्न, राइट। अगर इस तरीके की फॉर्मेशंस कभी भी होती हैं तो इस कैंडलस्टिक के हिसाब से ये जो रेड कैंडल्स होते हैं इसके लो का स्टॉप लॉस लेके हम इन कमिंग डेज, मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कमिंग वीक या कमिंग डेज मार्केट के लिए बुलिश रहने वाले, राइट, जब इस तरीके की फॉर्मेशंस हो जाती हैं। और देखिए आपको ये क्लियर है कि आपका स्टॉप लॉस ये रहने वाला है। अगर सपोज करिए स्टॉक का लो 80 रुपीज का है तो आपका 80 रुपीज का स्टॉप लॉस है। अब 80 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड को होल्ड करके चल सकते हैं, राइट। सो दिस इज बुलिश इनगल्फिंग। लेट्स टेक वन एग्जांपल, राइट। हम एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। देखिए ये अल्ट्राटेक सीमेंट्स है, ये कॉन्टिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अल्ट्राटेक के अंदर कॉन्टिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर। आप ये नीचे देखिए, दिस वन आप ये देख रहे हैं, देखिए गैप डाउन खुल के, मैं आपको चार्ट्स में क्लियर दिखाता हूँ। जस्ट सी दिस वन, दिस इज अल्ट्राटेक सीमेंट, राइट। अभी देख रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, देखिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा है स्टॉक का, एंड स्टॉक गैप डाउन खुल के ये जो रेड कैंडल है ये पूरी कैंडल को कवर कर गया। और फिर ये कैंडल ये देखिए 2900 के आसपास है, उसके बाद इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ और कैंडल कॉन्टिन्यूस, स्टॉक देखिए 3600 तक गया। स्टॉक दोबारा नीचे आया बट अगेन स्टॉक्स ऑन ए हायर साइड रहा, राइट। सो दिस इज ए बुलिश कैंडल, दिस इज ए वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ बुलिश इनगल्फिंग, जो कि बॉटम के आसपास बना है, right? So I hope you understand कि bullish engulfing किसे कहते हैं, right? So and next one is bearish engulfing. It's just a opposite of bullish engulfing. जैसे हमने bullish engulfing के बारे में बात करा कि वो bottom पे बनता है, उसी तरीके से हम bearish engulfing की बात कर रहे हैं। It's always occurred on the top, right? It's always happen on the top. ये देखिए टॉप पे ही बन रहा होता है, ये हमेशा टॉप पे ही बनता है, और जब भी टॉप पे बनता है इट्स ए क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट माइट भी यहाँ से रिवर्स हो जाए, राइट। और जब भी इस तरीके की टॉप पे फॉर्मेशंस होती है आपको इस रेड कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लेके चलना है, राइट। इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लेके चलना है, और आपको ये मान के चलना है कि इस तरीके के फॉर्मेशन के बाद स्टॉक या मार्केट या कोई भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट जिसे आप चार्ट्स पे देख रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस नीचे आ सकता है, राइट। तो इट्स ए बियरिश कैंडल पैटर्न। मैं ये भी आपको एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ, राइट। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी सेम अल्ट्राटेक सीमेंट में ही हमने एग्जांपल लिया हुआ है। ये देखिए आप टॉप पे देखिए, ये दिख रहा है आपको, देखिए ये जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है इस रेड कैंडल की बॉडी ने पूरा कवर कर दिया, ठीक है। और देखिए वहां से स्टॉक उसके बाद कैसे करेक्ट हुआ, राइट। ये देखिए ये पूरा का पूरा स्टॉक वहां से कम 400-500 रुपए स्टॉक नीचे आया है, राइट। सो दिस इज ए बियरिश पैटर्न, एंड
दिस इज अ बियरिश पैटर्न, और बेसिकली इंडिकेशन इसका यही होता है कि जब भी इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है हम लोग नेगेटिव साइड पे ट्रेड लेते हैं। सो दिस इज अबाउट द कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले हम लोगों ने कैंडल की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात किया कि कैंडल कैसे डेवलप होती है, कैंडल की फॉर्मेशंस कैसे होती है, कैंडल्स को पहचानते कैसे हैं, राइट। एंड नाउ वी हैव डिस्कस about the basically about the pattern की कैसे कैंडल्स में डोजी किसे कहते हैं, हैमर किसे कहते हैं। Our next point is exit and entry based on the trend with supportive tools, right? So as we have discussed कि हमने exit entry कैसे करनी है। So our first point is जैसे हमने ट्रेंड के बारे में बात करा था कि don't take any trade against the trend, right? So this is the first topic. बेसिकली हमें कोई भी ट्रेड कोई भी ट्रेड हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं लेना है, राइट। जनरली आई टॉक टू मेनी क्लाइंट्स ड्यूरिंग द डे, मैं काफी क्लाइंटों से बात करता हूँ, एंड एवरीबडी इज टेल कि यार रिलायंस बहुत ज्यादा चल चुका है, इन्फोसिस बहुत ज्यादा चल चुका है, या फिर XYZ कोई भी स्टॉक जो बहुत ज्यादा चल चुके होते हैं आप इन्हें बेच देते हैं, अब ये नीचे आ जाएगा। सो नो, इट्स क्लियर नो, इट्स मीन डोंट टेक एनी ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। जब ट्रेंड किसी भी स्टॉक का पॉजिटिव होगा तो आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड लेना है। देखिए फिर अगेन मैं उसी रिलायंस की ही बात करूंगा, ये रिलायंस का चार्ट है। देखिए रिलायंस में जब हम कोई भी ट्रेड लेंगे, कोई भी ट्रेड की बात करेंगे रिलायंस के अंदर, सो वी शुड बाय ओनली फॉर द वी शुड लुक ओनली फॉर द बाय, ठीक है। मैं रिलायंस का चार्ट लगा लेता हूँ। देखिए कोई भी स्टॉक, ये देखिए ये रिलायंस का चार्ट है, एक क्लियरली अप ट्रेंड है। देखिए जब अप ट्रेंड में हम किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं तो आप ये देख के चलिए, जब क्लियर स्टॉक का फॉर्मेशन हायर टॉप हायर बॉटम की तरफ फॉर्मेशन हो रहा है तो हमें देखिए पहले दो चीजें हैं। हमें एक तो जब भी ट्रेड लेना है कि स्टॉक सपोज करिए, देखिए ये स्टॉक का बॉटम है, स्टॉक टॉप पे गया एंड स्टॉक अगेन दोबारा बॉटम की तरफ करेक्ट हुआ, तो आपको पहले सबसे पहले समझना क्या है बॉस, स्टॉक का ट्रेंड अप है, और स्टॉक को हमेशा ट्रेंड हमें कोई भी ट्रेड जो प्रीवियस बॉटम है वो ब्रेक नहीं कर रहा है तो उसके आसपास लेना है, राइट। देखिए दो तरीके के ट्रेड है, मैं फर्दर अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला ट्रेड तो एक तो हम ट्रेड लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड कि जब स्टॉक का ट्रेंड अप है। देखिए आप जब भी कोई भी अप ट्रेंड स्टॉक में कोई भी ट्रेड लेते हैं, कोई भी ट्रेड लेते हैं, तो अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में जब भी आप ट्रेड लेंगे, अगर आप बाई चांस अगर आप हायर लेवल पे भी अगर आप स्टक हो जाते हैं, सपोज रिलायंस किसी ने अगर 1600 रुपए पे भी ले लिया है, तो कोई अगर वो वहां से करेक्ट होके 1500 रुपीज भी आ जाता है, तो उसमें से देखिए देयर इज ए वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी, इट्स ए टाइम ऑफ मैटर, खाली आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन वेट करना पड़ेगा और वो आपका रेट दोबारा आ जाएगा। तो व्हेन यू आर टेकिंग ए बाय कॉल इन ए अप ट्रेंड स्टॉक, तो आप अगर हायर लेवल पे भी फंस जाते हैं तो उसमें भी घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज स्टॉक का ट्रेंड अप है, स्टॉक नीचे आ गया है, माइट बी वो 10 डेज 15 डेज 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद वो दोबारा उस लेवल को टच कर देगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको अप ट्रेंड के स्टॉक में हमेशा बाय साइड में रखना है। और देखिए अप ट्रेंड के स्टॉक्स में जब भी आप कोई भी ट्रेड करते हैं, तो जब भी स्टॉक का ब्रेकआउट आता है, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का ये ब्रेकआउट देखिए, राइट, तो जो पहले स्टॉक का रेजिस्टेंस रहता है वो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए वो सपोर्ट लेवल का काम करना शुरू हो जाता है। देखिए ये लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक ऊपर गया, एंड जो ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है, राइट। अगेन स्टॉक ऊपर गया और ये जो ब्रेकआउट लेवल था, ये देखिए ये ब्रेकआउट लेवल था, वो अब सपोर्ट लेवल का काम करने लगा, राइट। तो पहला ट्रेड हमें ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड लेना है, और क्लियर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में समझाता हूँ कि कैसे हाउ वी कैन टेक अ गुड ट्रेड, राइट। सो सेकेंड आवर पॉइंट इज बाय ऑन ब्रेकआउट। देखिए ये इन्फोसिस का चार्ट है, दिस इज अ डेली चार्ट ऑफ इन्फोसिस, राइट। ये इन्फोसिस का चार्ट है, जब इन्फोसिस का ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो इन्फोसिस में आप देखिए, मैं आपको चार्ट्स पे ही समझाता हूँ कि आपको बाय कैसे करना है और किस टाइम पे बाय करना है। सी दिस इज इन्फोसिस, देखिए ये इन्फोसिस का चार्ट है, राइट। आप ये देखिए जब भी ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ, मैं इसे लाइन चार्ट कर देता हूँ, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको। सी दिस, देखिए स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा था, राइट। जब इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेक करी, कंसोलिडेशन का मतलब ये है, ये देखिए ये स्टॉक एक रेंज थी 650 से लेके
580 तक, ठीक है, ये एक कंसोलिडेशन रेंज में। और जब स्टॉक का यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट बना, ब्रेकआउट का मतलब जब इसने ये कंसोलिडेशन ब्रेक करी, यहाँ से स्टॉक कॉन्टिन्यूस कहां तक गया, 720, राइट, 720 तक गया। आप ये देखिए, एक तो हमें क्या है, अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स को जब स्टॉक को ब्रेकआउट्स पे खरीदना है, और दूसरा जब हमें किसी भी स्टॉक को करेक्शन के टाइम जब वो प्रीवियस सपोर्ट के आसपास आ जाए तब खरीदना है। देखिए अगर कहीं बाई चांस आपने इन्फोसिस यहाँ नहीं खरीद पाए, ये देखिए मैं जापानीज कैंडल कर देता हूँ, दिस इज जापानीज कैंडल एक्चुअली, राइट, यहाँ अगर आप नहीं खरीद, अगेन देखिए अगेन स्टॉक में करेक्शन हुआ, और किस लेवल तक करेक्शन हुआ आप ये देखिए 650 तक, जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था स्टॉक का। अब ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये प्रीवियस ब्रेकआउट था, इस प्रीवियस ब्रेकआउट से स्टॉक का ब्रेकडाउन, यहाँ से करेक्शन हुआ और यहाँ तक आया, और अगेन स्टॉक देखिए यहाँ से पूरा रिवर्स कर गया, और फिर आप फर्दर ये देखिए, फर्दर ये कंसोलिडेशन स्टॉक की जो प्रीवियस हाई था, ये देखिए जब स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक किया, देखिए 720 ब्रेक किया, और अगेन 720 से स्टॉक ये देखिए 800 तक, राइट। So this is the expansion mode and this is a contraction mode, right? जब कंसोलिडेशन चलता है तो हमें किसी भी स्टॉक्स को ब्रेकआउट्स पे खरीदना है, सबसे पहले दो चीजें माइंड में लेके चलनी है, वन इज ए अप ट्रेंड एंड सेकंड कि अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स पे को बाय करना है, सेकंड हमें ब्रेकआउट्स पे बाय करना है। ब्रेकआउट्स का मतलब जब भी वो कंसोलिडेशन ब्रेक करे तब हमें वो स्टॉक को बाय करना है, और अगर कंसोलिडेशन ब्रेक नहीं करता, ब्रेकआउट पे बाय नहीं भी करना है, तो जो प्रीवियस सपोर्ट था स्टॉक का, जहां से उसने प्रीवियस बॉटम बनाया था, जो हमारी अप ट्रेंड की डेफिनेशन थी, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, देखिए ये देखिए, आप देखेंगे लाइन चार्ट करेंगे ना, ये देखिए हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, राइट। तो जब भी स्टॉक प्रीवियस बॉटम के आसपास आए, वी शुड लुक फॉर ए बाय। देखिए यहाँ से करेक्शन के बाद ये स्टॉक दोबारा से यहाँ तक आया, एंड देन अगेन स्टॉक वेंट अप, एंड देन अगेन स्टॉक कम डाउन, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट के आसपास। कभी भी इसने प्रीवियस अपना लो ब्रेक नहीं किया, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, आप ये देखिए, राइट। सो दिस इज ए वेरी क्लियर इंडिकेशन कि हमें अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में कब और कहां बाय करना है, और दूसरा पॉइंट हमारा कि हमें ब्रेकआउट्स पे बाय करना है, राइट। तो इन्फोसिस का चार्ट था जिसमें हमने ब्रेकआउट्स दिखाया हुआ था कि कैसे कैसे हमने बाय करना है, किस लेवल पे एंट्री करनी है। And third is sell on breakdown. देखिए this is only for the traders only, right? Sell on breakdown का मतलब ये है कि जो ट्रेंड, देखिए पहले ये कोल इंडिया का चार्ट है, कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और जब भी इसने कंसोलिडेशन ब्रेक किया है, देखिए कॉन्टिन्यूस फॉल, ये देखिए कॉन्टिन्यूस फॉल, राइट। तो जब भी एक तो बाय ऑन ब्रेकआउट एंड सेल ऑन ब्रेकडाउन्स है, इट्स अ वेरी लेटेस्ट एग्जांपल्स कि अब कंटिन्यू, अब देखिए फिर दोबारा से यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में, ये लेवल और ये लेवल, जब भी इस लेवल के आइदर साइड स्टॉक जाएगा, विल टेक इट ट्रेड्स, राइट। सो दिस इज बाय ऑन डिप्स, अदरवाइज बाय ऑन ब्रेकआउट्स, ओनली इन अप ट्रेंड स्टॉक, और जो डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स हैं वो हमें हायर साइड पे ही सेल करने हैं, राइट। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने किस तरीके से और कब बाय करना है, कब सेल करना है, किस तरीके से ट्रेड्स को मैनेज करना है, राइट। सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड्स। नाउ वी हैव ए Q&A सेशन। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आंसर है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आपको रिगार्डिंग एनी स्टॉक, regarding any things about the technicals, तो you can ask me। हम लोग 5 से 10 मिनट 5 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन रखा हुआ है। तो now we'll discuss about the Q&A session, right? If you have any query, तो you can ask me. So I did not. So one guy is asking how much percentage you give to the technicals when you look for the investments and trading, right? So Mr. Karan is asking कि आप टेक्निकल्स को कितना परसेंटेज देते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सी देखिए करण, फर्स्ट आई वुड से कि जब मैं ट्रेडिंग की बात करता हूं तो आई 100% रिलाई ऑन द टेक्निकल्स, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ वेरी शॉर्ट टर्म गेम, राइट। सो आई बिलीव कि मैं जब ट्रेडिंग की बात करता हूं एंड ट्रेडिंग जब भी मैं करता हूं तो मैं टेक्निकल के बेसिस पे ही करता हूं।
And when we talk about investments, तो yes, हम लोगों का ratio, because we are also managing PMS also, तो हम लोग बेसिकली 60 and 40 का रेशियो रखते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए. 60% we look fundamentals, 40% we look technicals. बट सी ये कहीं नहीं लिखा है कि अच्छे फंडामेंटल्स कंपनी में टेक्निकल्स देखना जरूरी नहीं है. तो सो व्हेन वी आर डूइंग ट्रेडिंग and so when we are doing trading, so we 100% rely on the technicals. And one question from Prakash, in uptrend when showing reversal of trend, please explain in any charts. See, आपने ये बोला कि uptrend and downtrend का reversal कैसे होता है. Let's take examples. मैं कोई examples देखता हूँ. Just a moment. मैंने अभी देखा था, लेट्स डिस्कस अबाउट द हिंडाल्को, राइट. सी देखिए प्रकाश जी, जब हम डाउन ट्रेंड से शिफ्टिंग टुवर्ड्स द अप ट्रेंड एंड अप ट्रेंड से शिफ्टिंग टुवर्ड्स द डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, सो दिस इज द लेटेस्ट एग्जांपल. देखिए हिंडाल्को का डेली चार्ट है. स्टॉक इज कॉन्टिन्यूअस ट्रेडिंग विद अ हायर लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन, राइट. सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है. ये देखिए यहाँ से 220 का प्राइस है स्टॉक का एंड इट्स कम डाउन टू 80 रुपीज. लेकिन स्टॉक ने फिर आप जब बॉटम पे आने के बाद, अभी देखिए मुझे नहीं पता है कि हाँ रिवर्सल है या नहीं है, लेकिन स्टॉक ने जब यहाँ से रिवर्सल लिया है, ये देखिए आप, ये हिंडाल्को का चार्ट है, और स्टॉक ने दोबारा से करेक्शन लिया है एंड स्टॉक ने दोबारा से रिवर्सल लिया है. आप ये देखिए, अभी तक लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन हो रही थी. यहाँ देखिए, ये देखिए आप, ये प्रीवियस बॉटम था एंड यहाँ पर स्टॉक ने क्या करा है, यहाँ पर देखिए स्टॉक ने लोअर बॉटम की फॉर्मेशन करी है, राइट. यहाँ से लोअर बॉटम की सॉरी हायर बॉटम की फॉर्मेशन की है, और जो प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई वाज दिस लेवल 123 एंड स्टॉक ने अगेन 123 के लेवल को भी ब्रेक करके 130 के आसपास किया है. तो सो प्रकाश जी, दिस इज ए इंडिकेशन कि नाउ स्टॉक हैज बीन रिवर्स, राइट. अब स्टॉक का डाउन ट्रेंड जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है. सो दिस इज ए वेरी फाइन एग्जांपल कि स्टॉक जब लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ ट्रेड कर रहा था, अब स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम के साथ ट्रेड कर रहा है, राइट. सो दिस इज ए वेरी क्लियर इंडिकेशन कि स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है. आई होप यू अंडरस्टैंड कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे देखते हैं, राइट. जस्ट अ मोमेंट. So I'm just watching the question. One guy is also asking. Just a moment. So I'm not very used to with this software. So just a moment. Recharge. I have not traded for a long time, and my ID. Sorry, sir. You have to ask this question with your broker. I couldn't help you about these things. If you have any question regarding any stocks, regarding market, so you can ask me, right? So one question from one guy: when are the candlestick pattern effective? Say bullish engulfing on the top, it is significant as engulfing made at the support level. So yes, it's a good question. I would say just a moment. I would say कि this is engulfing. When we talk about the engulfing pattern, it's a very effective when it's occurred at the bottom, right? Top पे we would not say कि this is a engulfing pattern. वो जब bullish engulfing की हम बात करते हैं तो हमेशा हम bottom की बात करते हैं. टॉप पे अगर वो engulf हुआ है तो this is not a engulfing pattern, right? So I hope you understand कि जो बॉटम पे उसकी फॉर्मेशंस होती है, that is very good, right? Any other question? Just a moment. Just a moment. Sir, बैंक निफ्टी का explain करना, right? So what do you ask? What do you want to ask me in bank nifty? What is about M&M Finance? M&M Finance, see, just a moment. See,
This is M&M Finance. Just a moment, let me check about it. Right. M&M Finance is yeah, it's currently trading at 136. This stock is quite I would say this stock is quite sideways. देखिए जब इस stock का breakout बना था, ये देखिए ये 110 के आसपास stock का breakout बना था और 110 के आसपास उसका bottom 75, तो उसका target is almost 140 के आसपास था. stock ने वो target कर दिया है and as of now stock एक consolidation range में trade कर रहा है. So I would say now this stock in a consolidation mode, right? But I would say you can hold this stock, right? So you should hold this stock, right? So any other question? So how to decide time frame for charts? See, ये राज दासवानी जी पूछ रहे हैं how to decide time frame for charts. See, sir, it depends totally on you कि how we can decide time frame. So if you are taking a long position, if you are looking for a investments also, so you should look at least daily and weekly charts. If you are a short-term traders, you are looking only for hardly 1-2 days and 5 days, so you can go for 60-minute charts and even daily charts, right? So it's totally up to you कि at what time you are looking for your investments. आपका वो जो आपने ट्रेड लिया है वो कितने टाइम के लिए है और बेसिकली किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है. तो इट्स डिपेंड. जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करते हैं तो वी लुक only 15-minute charts, 60-minute charts, max to max daily chart. When we looking for the investments, so we look weekly charts, daily charts, as well as monthly chart also. So it's totally depend on you कि आप किस तरीके का और किस टाइम पे क्या देख रहे हैं, right? Any other question? Are breakouts and breakdown always with the higher volumes? See, Sanjeev Prakash ji पूछ रहे हैं कि are breakouts and breakdowns always with a higher volumes? Sir, yes, it's a very good thing कि if any breakouts with a higher volume, it's always support to the stocks, right? Either it's breakdown, either it's breakout. अगर कभी भी किसी भी स्टॉक का ब्रेकआउट्स अच्छे वॉल्यूम के साथ होता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग. वो स्टॉक को उतने ही कांस्टेंट अपसाइड में रखता है अगर ब्रेकआउट्स अच्छे वॉल्यूम से होता है. और अगर कहीं लेस वॉल्यूम है तो यस, देयर इज अ चांसेस, देयर आर ह्यूज चांसेस कि वो ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस भी होते हैं. तो यस, अगर ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स विद हायर वॉल्यूम के साथ हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट? सी दिस, अभी कोई सर मुझसे एमएनएम के बारे में पूछ रहे थे. सो आई वुड से ये देखिए, इसका भी ब्रेकआउट्स विद वॉल्यूम हुआ है. आप ये देखें, ये चार्ट ही लगा रखा है मैंने. सॉरी. And this breakouts come with a very good volume, right? उसके बाद देखिए stock भी within a 2-3 days it's went up to almost 10% from the breakouts level, right? So it's always supportive. जब भी stock में breakout and breakdowns बनते हैं, it's a very supportive things, right? Any other question? So what is the time frame? Anil Anil Banga ji पूछ रहे हैं, what is the time period considered for trend analysis? Just a moment, sir. I'm not able to watch the entire message. Two different periods, how contra trends. I'm not getting you, sir. What you are to ask? Just a moment. What is the time period considered for trend analysis? Right, sir. See, trend analysis, yes. When we are looking trend in different segments, right? It depends on the time frame, right? कि आप डेली चार्ट्स पे देख रहे हैं, आप वीकली चार्ट्स पे देख रहे हैं. सी देखिए, कई बार होगा आपको कि वीकली चार्ट्स पे आपका ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, बट 60 मिनट पे आपका ट्रेंड रिवर्सल बन सकता है, राइट? क्योंकि वीकली चार्ट्स पे यू हैव टू वेट टिल द वीक, राइट? एंड 60 मिनट्स में माइट भी आप निफ्टी को 200 पॉइंट का करेक्शन आपको देखने को मिल जाए, बट समहाउ वही वीकली चार्ट पे व्हेन वी टॉक अबाउट द वीकली चार्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट द डेली चार्ट, वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द
60 मिनट चार्ट, इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल, राइट, इट्स अ ट्रेंड। तो वो 60 मिनट्स का आपको होराइजन भी उसी हिसाब से लेके चलना पड़ेगा, आपको टारगेट भी उसी बेसिस पे लेके चलना पड़ेगा। आपने अगर कोई भी ट्रेड 15 मिनट्स या 60 मिनट्स पे लिया है, इट्स हार्डली फॉर 1 days 2 days and 3 days, right? So it's a short term trades. There is a 2-3 types of trade. One is a short term, one is an intermediate trend, third one is a long term trend, right? तो when it doesn't mean कि अगर short term trend down है तो आपका long term trend और intermediate trend भी down है। When we define to the intermediate trend हम 1 महीने से 3 महीने की बात करते हैं। When we talk about the long term trend हम 6 महीने से 1 साल 1.5 साल की बात करते हैं। When we talk about the short term trend we talk almost 10 days, 5 days, 7 days कि 5-6 days का ट्रेंड क्या है, तो we discuss accordingly, right sir? तो कॉन्ट्रा, यस कॉन्ट्रा ट्रेंड हो सकते हैं, माइट बी साइडवेज 60 मिनट का में आपका डाउन ट्रेंड हो सकता है, बट वही ट्रेंड आपका डेली चार्ट में या हार्ली चार्ट में, सॉरी वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में माइट बी वो अप ट्रेंड हो। एनी अदर क्वेश्चन? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम Nirmal Kumar Bajaj. Will 7500 be weekend reach? Has market made it off? Hi Suhail ji, what is the double bottom pattern? सर डबल बॉटम फॉर्म, विशाल जी पूछ रहे हैं कि डबल बॉटम फॉर्मेशंस क्या होती हैं। सर डेफिनेटली विल हैव अनदर सेशन ऑन द पैटर्न एनालिसिस, राइट? अभी हमने वो कवर नहीं किया है, विल कवर दिस सेशन, राइट, कि पैटर्न एनालिसिस क्या है। if you like this seminar तो definitely we'll have another session, right? कि वो pattern analysis, because we cannot cover the entire things in a single day, right? And in a half an hour session, so we'll cover your pattern analysis in another session, right? There are a lot of questions. I mean, so everybody is asking about the stock. There are a lot of stock: IGL, SDFC Limited. So definitely see, I cannot go one by one because there are a lot of questions regarding the stock. So what we can do, we just share our we have shared our number also, right? We have on our websites also, we have a on number also, right? So please note down this number, so you can directly can touch with me, I mean, on this number. This is not my number, but I'm available on this number, right? So if you have any query regarding any stock, regarding any things about the technicals, so we can describe later, right? So I hope you like this session. So thank you very much, and thank you lots for giving your precious time. Thanks a lot. Thank you.